Nation currently in terms of what kind of a India do you think the voters will be looking for? May I request everybody to please be silent and sit down? First of all, thanks a lot for inviting because वैसे तो आजकल कोविड के बाद से ऑन स्क्रीन दूर से बातचीत होती रहती है लेकिन पर्सनल मिलना बहुत कम हो गया था इसलिए आना बहुत ज़रूरी था हमें. And we see the new look also with Yashwant ji. Yeah, exactly. So, yeah, Mood of the Nation is something which is like, it has been released with India Today yesterday, and today also the numbers, me and Sanjay ji, both of us would be doing the number crunching over there. What it seems is a kind of contradiction in moods of sort. Because when we look into the problems, the issues, there is a very serious set of issues that public is concerned about, worried about. For example, in the last 30 months, and we do a daily tracker, as you are aware. So, on the question of what are the problems in the day-to-day life, the issues of inflation, price rise, unemployment, they are hogging up, number one. Number two, big number of people are actually reporting, particularly the housewives, that the kitchen is going out of hand. It's the budget or the household number crunching, as we call it, कि रसोई का खर्चा मुश्किल हो रहा है. And last time I had seen those kind of numbers going up as a top priority, top concern thing was in 2013. So obviously for anybody in the opposition rank and file, if I tell him that, okay, after 2013 I am watching inflation and price rise as the most important issue, and they go, oh yeah, this is why this government is going to go down. And that is where the contradiction creeps in. Because when we ask the question number one, what is the important issue, what is concerning you? Price rise, yes. Inflation, yes. And unemployment, blah, 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 everything. The second question then we ask that, who according to you can give a solution to this or give a respect? That is where the same set of respondents start taking the name of Mr. Modi. Now, that's a very weird scenario where I got a problem. Yes, I got a problem. Who is giving the solution? Opposition beams up. This guy has a problem. And who is going to give the solution? I'm sorry, but I am not looking at a solution which you are offering. I am looking at a solution which Mr. Modi is offering. So that is kind of a weird situation. Yes, there is one thing, Priya, that in 2013, in run-up to the 14 election, in my numbers and even in Sanjay Bhai's CSDS numbers, if I remember them correctly, apart from the inflation, mehengai and like that, the biggest problem that cropped up was the issue of corruption. And that in the last 9 years has completely gone out of the radar as far as the perceived corruption in the government is concerned. Perceived is a good word. Perceived is a good word because we all know that, when they took it as a local corruption issue in Karnataka, the 40% Sarkar, that damaged BJP over there. But as far as the central government or Mr. Modi's personal reputation is concerned, that perceived corruption issue is not at all. He is more or less kind of Teflon. It doesn't really affect him. It doesn't stick on him. So without the second allegation, the problem of the inflation and problem of unemployment and other sorts of problem, they don't really convert into anger against the sitting government. That's what is happening. That's the big difference. Okay. I don't know mood of the nation, but mood of the panel is, I think, green. Both the psephologists have connected in some way. But Sanjay ji, first, your first reaction as to what are the issues that will dominate, that people are concerned about? See, if I look at what is the mood of the nation, I see it's like a parallel to the railway line. So the railway line, both the line goes on and on and on. It never meets at any point. Some point it crisscrosses, but generally it goes on and on. So the mood of the people at the moment, mood of the nation is running on two parallel lines. One is about
people's anxieties about unemployment, price rise, and several such anxieties. So that's one mood which we witnessed among large number of people. But at the same time, there is another line, as I said, the parallel line. On the parallel is Prime Minister Modi's popularity increasing day by day. There's no sign that Prime Minister Modi's popularity is coming down. India's image in the world, I'm saying this from people's point of view. How do Indians see the mood? What is the mood of the people with regard to these issues? So people see that India's image in the world has gone up. India and Prime Minister Modi's is asserting India's position in the world. So precisely that is what I was trying to say. I see two moods going parallel. One is people's anxieties about price rise, about day-to-day issues. We keep talking about unemployment, price rise, and there are several other issues. But at the same time, I think the other narrative, and that is why BJP is still such a dominant political party. When I say dominant, you look at their electoral success in the assembly election, look at their electoral success in 2019 elections. Yes, there has been some setbacks in assembly election. So this is the mood that traveling on two parallel lines. So Rashid, issues ऐसे कि नहीं हैं. There are issues, whether it is employment, price hike, there are issues. But there is also a feeling कि कोई अगर solve कर सकता है इन issues को, तो it is probably Prime Minister Modi. He is scoring above all the others as of now, is what I think they are saying. I'll ask them this question, but first your take. Yeah, so I think, Priya, this is a very interesting proposition. On the face of it, Mr. Modi continues to be favorite. But here I am in company of two very well-known, renowned cephalogists. I don't see, Priya, this kind of, a kind of shift. What is happening today, that Mr. Modi's popularity, going by Mr. Yashwant Deshmukh's account, is 47%, which is very high. And of course, it gives him a pole position. But at the same time, the opposition leaders, popularity or standing is 27%. Now, I don't, that being Rahul Gandhi's, popularity at this point of time, according to C Voter, is about 27%. Now, this is quite striking. Then you look at the, the regional parties. Of course, India is not a union of states in a constitutional way, but in some ways, politically speaking, of course, there are various states and regional aspirations are there. If you look at map of India, the India alliance also, is looking very formidable, and there is a fatigue factor. You look at Mr. Modi's Lok Sabha speech or his narrative, there is nothing new or striking. 2019, without hinting at any iota of conspiracy theory or anything, I think last moment it was greatly helped the BJP and NDA, the kind of things that happened across the border, that first the Pulwama incident and then Balakot. So it helped Mr. Modi get another, I would say, 40-50 extra seats. Now if there is a hung house, then it's anybody's game. And I think today's position is that the India alliance, which is a pre-poll alliance, remember in 2014 or 19, there was no pre-poll alliance. So this time around, there is a pre-poll alliance, and the opposition leaders individually, whether it's Rahul Gandhi, Mamata Banerjee, M.K. Stalin, Nitish Kumar, Arvind Kejriwal, they seem to be doing well in their respective constituencies. So it's a very open kind of battle. यशवंत जी, ये जो क्वेश्चन था कि देर इज़ अ सोल्यूशन के वो आई मीन द इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन पीपल स्टिल फील के आउट ऑफ डिलीवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी इज स्टिल द हाईएस्ट. आप अभी भी ये कायम है? देखिए, ये तो चल रहा है, इसमें कोई बात ही नहीं है. नैरेटिव्स के ऊपर जब बात होती है तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस नैरेटिव के ऊपर ही आए थे कि वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं. मतलब उनका एक जिस तरीके का किरदार मीडिया में या लोगों की मन में जो बना था, वो ये कि अच्छा ये डूअर है इन दैट वे. और इस नैरेटिव के साथ में एक और भी चीज़ आई बड़ी इंटरेस्टिंग, जिसको मैं विश्वसनीयता का संकट मानता हूँ विपक्ष के नेताओं के साथ में, एक तरीके से, कि ऐसा क्या है कि सब कुछ अच्छा हुआ इस सरकार में, ऐसा तो नहीं है ना. बहुत सारी गड़बड़ें भी हुई, फेलियर्स भी हुए. डिमोनेटाइजेशन से बड़ा फेलियर कौन सा पॉलिसी लेवल पे माना जाता है. लेकिन एक उलट बांसिया था, बरसे कंबल भीगे पानी. उलट बांसिया ये था कि लोगों को तकलीफ भी हो रही थी और लोग वाहवाही भी कर रहे थे. आज भी आप लोगों से सड़क पे पूछिए, डिमोनेटाइजेशन से तकलीफ हुई, लोग कहेंगे हाँ. तो
मोदी ने गलत किया, कह देंगे हाँ ठीक नहीं था, तो इसका मतलब मोदी गलत है? नहीं नहीं, उनकी नीयत ठीक थी। तो अब ये एक पोजीशनिंग किसी नेता की जिसमें उनके गलत डिसीजन को भी लोग ओन अप कर लें, लोग कहें कि दो चीज़ों के लिए उनको एक, जिसे कहते हैं ना, गिविंग अ रियली लॉन्ग रोप। एक तो कि बंदे की नीयत ठीक है, और दूसरा बंदा मेहनती बहुत है, 24 में से 28 घंटे काम करता है। तो ये कुछ वैसी प्रिय बात हो गई। मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे बहुत अच्छे, वो अटेम्प्ट करने के नंबर देते थे, मेन आंसर न्यूमेरिकल का क्या आया इसके नहीं होता था। वो इस बात के लिए नंबर देते थे कि कितनी कोशिश की, कितना दिमाग लगाया, कितना एफर्ट किया। तो भारत की जनता ना वो कुछ उस प्रोफेसर की तरह हो गई है, वो केवल एंड रिजल्ट पे आमादा नहीं। और ये केवल मोदी जी पे बात लागू नहीं होती है, इस देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ में भी ये बात लागू होती है, जो लगातार प्रो इनकम्बेंट मैंडेट अब जीत रहे हैं, कि लोग उनकी मेहनत पे उनको वोट दे रहे हैं, उनके जो एफर्ट ले रहे हैं उस पे वोट दे रहे हैं। तो ये नैरेटिव में शायद देश के एक एंटी इनकम्बेंसी के नैरेटिव से हम प्रो इनकम्बेंसी के नैरेटिव पे शिफ्ट हो चुके हैं। वेरी गुड पॉइंट। तो एक तरफ है प्राइम मिनिस्टर की नीयत, दूसरी तरफ है राहुल गांधी की मोहब्बत। लेकिन मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर्स नीयत अभी भी, आई थिंक पीपल वांट टू वोट फॉर समवन दे ट्रस्ट और दे वोट फॉर समवन दे लाइक। प्रिया, आपने कहा ये टाइटल था नैरेटिव फॉर 2024, एंड आई सी अ बिग चेंज इन इंडियन इलेक्शंस, इंडियन पॉलिटिक्स ओवर लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स आई वुड से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ का बदलाव 10 साल में ही हुआ, और वो बदलाव क्या है, व्हाट इज दैट बिग चेंज? आई थिंक द बिग चेंज इज elections are being contested on narratives now, not on the performance. परफॉर्मेंस पे चुनाव नहीं हो रहा है, नैरेटिव है। और जो आपने जिस बात का जिक्र किया यही नैरेटिव है, जिस बात का जिक्र यशवंत भी कर रहे थे। नैरेटिव यह है सरकार सब कुछ अच्छा कर रही है, ठीक है कुछ गलतियां हुई होंगी, बट वो गलतियां नहीं है क्योंकि नीयत ठीक थी। देयर में बी सम मिस्टेक, देयर में बी सम हिकअप्स। तो ये बड़ा बदलाव मुझे लगता है आज चुनाव में दिखाई पड़ता है। और नैरेटिव क्या है? आपने दो लोगों का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नैरेटिव इज ऑल पॉजिटिव इन फेवर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड द अदर नैरेटिव आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, एवरीथिंग बैड अबाउट राहुल गांधी। ठीक है, पदयात्रा की कुछ इमेज बदला, कई सर्वेज हैं इस और इशारा कर रहे हैं, देयर आर मेनी एविडेंसेस विच सेज कि ठीक है अच्छा काम किया, इमेज थोड़ी सी सुधरी, बट बड़ा नैरेटिव क्या है? आजकल उस शब्द का जिक्र नहीं होता और मैं नहीं चाहता हूं मैं उसका जिक्र करूं। बड़ा है ना शब्द, नैरेटिव क्या? कोई कहते पप्पू है, कोई काम लायक नहीं है, किसी काम का नहीं है। सो दिस इज द नैरेटिव विच हैज बीन बिल्ड अराउंड द टू पीपल और टू लीडर्स, एंड द बिग नैरेटिव विच हैज बीन बिल्ड अराउंड द प्रेजेंट गवर्नमेंट। भाई सरकार बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, वाइल देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एविडेंस। नैरेटिव और एविडेंस में बहुत फर्क है। एविडेंस, तमाम एविडेंस है जो ये बता रहे हैं कि, मैं ये नहीं कह रहा सरकार के काम काज खराब है, बट महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन बड़े नैरेटिव से उसको भी ढका जा रहा है। और बड़ा नैरेटिव क्या है? वो बड़ा नैरेटिव है नेशनलिज्म का बुखार, नेशनलिज्म, देश प्रेम। सबसे पहले देश, ये तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, दिस ऑलवेज दिस कैन बी रिजॉल्व। सो आई थिंक नैरेटिव हैज टेकन ओवर द परफॉर्मेंस, और इसी के लिए पूरा जो चुनाव है वो नैरेटिव के सहारे लड़ा जा रहा है। जो नैरेटिव अपनी ओर बना पाएगा, मुझे लगता है उसको आने वाले चुनाव में फायदा होता हुआ दिखाई पड़ता है। नैरेटिव का ऋषि जी मतलब ये भी है कम्युनिकेशन, कैसे अपने आप को मार्केट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो हम क्या, आर वी सो, आई मीन आवर नेशन वेयर वी आर गोइंग इनटू, वी आर बाइंग व्हाट पीपल आर सेइंग, और वी आर एक्चुअली सीइंग व्हाट इज बीइंग डिलीवर्ड? Yes, Priya, I think you have posed a very interesting point. There is a thing called कि कभी-कभी हम अपने ही प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं. We have seen this in 2004. What was the scenario? Of course, two things cannot be compared. 2004 and 2020, coming 2024. India was shining. Mr. Vajpayee's popularity ratings were very high. There was no credible opposition, and yet, the people of India gave a fractured mandate, a different mandate, the mandate which was not in favor of favorite, that being Atal Bihari Vajpayee.
Vajpayee. Mr. Vajpayee and Modi are of course two different entities. And as I said, 2004 cannot be compared with 2024. But there is a precedence, there is an opening. And that's how, you see, people of India did vote for a kind of question mark. And I'm saying that the regional parties are, if they, look, it's a very simple arithmetics. There is, regional parties which are there, the TMC, the DMK, the JDU, RJD, Aam Aadmi Party, etc. And of course, there is a Congress party. Now, that is the weak link, Kamzor Kadi. There are over 200 seats, and Yashwantji would vouch for that. There are over 200 seats where the Congress and BJP are in direct contest, and the strike rate, going by the strike rate of 2014 and 19, the BJP won by over 90% of seats. Now, if that gets reduced to, let's say, a 60-40 or 50-50 or something like that, we will have a very interesting proposition. And the coming round of assembly elections in Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh would point, would be a pointer towards it. दो चीज़ें यशवंत जी, एक तो क्या स्टेट असेंबलीज का इम्पैक्ट होगा नेशनल असेंबली में, दूसरा ये राहुल गांधी का अभी थोड़ा ही इज़ ट्राइंग टू गेट सम काइंड ऑफ अ नैरेटिव, चाहे वो नैरेटिव हो कि आई स्टैंड फॉर एवरीथिंग विच मोदी, अगेंस्ट एवरीथिंग दैट मोदी स्टैंड्स फॉर. तो आपको राहुल की नैरेटिव बिल्डिंग के बारे में? देखिए, राहुल जी देश के सबसे इफेक्टिव युवा नेता हैं, ये बात मैं मानता हूँ. उसके पीछे मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है. स्वार्थ मेरा ये है कि राहुल जी मुझसे 2 साल उम्र में बड़े हैं, और जब तक वो युवा नेता हैं, मैं राज्यसभा की टिकट तो नहीं चाहिए? नहीं. 2 साल मुझसे संजय जी वो उम्र में बड़े हैं, और जब तक वो युवा नेता हैं तब तक मेरे युवा होने के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा. इसलिए मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है. लेकिन गोइंग बियॉन्ड दैट, हमारे कम से कम हिंदी हार्टलैंड में तो ये बात मैं मानता हूँ कि बच्चों को पीट पीट के माएँ जो बनाना चाहती हैं, उसका मैं खुद भी भुक्तभोगी रहा हूँ. मेरी माँ बहुत चाहती थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ. मेरे नाना डॉक्टर थे, तो उनकी बड़ी तहे दिल से इच्छा थी, और उस मारा पीटी के चक्कर में उन्होंने मुझे साइंस ज़बरदस्ती, भाई पढ़ने में अच्छा था. हमारे ज़माने में अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप साइंस लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट. ह्यूमैनिटीज़ में तो इंसान जब कुछ नहीं कर पाता है तो जाता था, और अगर उसके बाद में रहा सा हुआ तो वकील बन गया, और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया तो पत्रकार बन गया. यही क्राइटेरिया होता था. अब अपनी माँ को ये समझाना कि मैं पत्रकार बनना चाहता हूँ, आप समझ सकते हैं, डॉक्टरी का आइडिया ड्रॉप करके. लेकिन मुझे इतना ज़रूर समझ में आया कि मैं अगर डॉक्टर बनता तो बहुत बेकार डॉक्टर बनता, क्योंकि या तो पेशेंट रो लेता या उसको देख के मैं रो लेता. भाई, जो डॉक्टर बनने के लिए जितनी जो ज़ब्त चाहिए वो मुझ में नहीं थी. मैं मिसफिट होता उसमें. मुझे लगता है राहुल जी बहुत अच्छे इंसान होंगे, बहुत संजीदा, अच्छे भले इंसान है. मुझसे जितने लोग, उनसे मैं नहीं मिला हूँ, लेकिन जितने लोग व्यक्तिगत रूप से मिले हैं उन्होंने तारीफ़ ही की है कि भाई अच्छे से बात करते हैं, लाइक दैट. लेकिन उनकी माँ उनको जो बनाना चाहती है, मुझे लगता है मैं अपने आप को देखता हूँ उसमें. एक डॉक्टर यशवंत देशमुख क्या होते, तो वो समस्या है. ही इज़ ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, या हम कहें उनके आसपास के लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं. हमारे ही ट्रैकर में आया, उनकी भारत यात्रा जब हुई, हम लोग ने बात की रशीद भाई, हमने लगातार रिपोर्ट किया कि उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं. कर्नाटक से उनका ट्रैकर निकला तो हमने कार्यक्रम में बोला कि द वन सिंगल बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस भारत यात्रा इज कि कर्नाटक के दोनों फैक्शन साथ में आके लड़ गए इलेक्शन, कर्नाटक के रिजल्ट्स आ गए. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ट्रैकर के नंबर में जब हम ये बोलते हैं ना कि राहुल गांधी के नंबर बेहतर हो रहे हैं, बेहतर किससे हो रहे हैं, किस कंपैरिजन में? तो 2019 में राहुल गांधी यहाँ थे, 20 में यहाँ गए, नीचे आते 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 ये यहाँ पहुँच गए. 2022 के अगस्त के समय, पिछले वर्ष के MOTN में, इस समय राहुल जी के नंबर अरविंद केजरीवाल के नंबर से केवल 2% आके थे. केवल 2% का गैप रह गया था एज अपोजिशन लीडर्स में. तो 20-22% से कोई बंदा घट के 8%, 7% पे टच कर जाए, और वहाँ से वापस रिकवरी करे 18, 17, 19, 20, तो हम तो कहेंगे ना नंबर बढ़ रहे हैं. बात तो सही है, नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर बढ़ के कहाँ पहुँच रहे हैं? नंबर बढ़ के आपके अपने प्रीवियस बेस्ट पे पहुँच रहे हैं, जो कि 20-22% का था. अब समस्या क्या है कि आपके 20-22% और सामने वाले का 60%, बीच में 40% का गैप है. आप
फेल होने से पास होने के नंबर पे आ गए, लेकिन अगला जो टॉप कर रहा है आप उसको डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं ना। अब ये बात समझनी नैरेटिव में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जब हम कहते हैं नंबर बढ़ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा सेक्शन मीडिया का है और जो एक जो आप कह सकते हैं कांग्रेस के सिंपैथाइजर इंटेलेक्चुअल्स या जो भी कहना चाहें, वो एकदम से उसको रीड करते हैं, बस अब तो राहुल जी के नंबर बढ़ गए, अब तो पलट गया, अब तो मोदी गया। और मैं कहता हूं भाई जी हैंड ब्रेक थोड़ा लगा लीजिए। मतलब ये अर्ध सत्य है। आधा सत्य ये है कि राहुल जी के नंबर बढ़ रहे हैं, नीचे से बढ़ के 20-22 अब इंप्रूवमेंट है। पूरा सत्य यह है कि मोदी अभी भी 40% आगे हैं। तो आप वो बात मानने को तैयार नहीं होते। और समस्या उसमें क्या आती है कि जब असेंबली इलेक्शंस होते हैं, अब बाय द वे प्रिया एक मैं भ्रांति दूर कर दूं, हम लोगों का सारा ध्यान 2014-2019 2014-2019 इतना ज़्यादा लगा है कि हम ये सत्य भी भूल गए हैं कि पिछले 9 सालों में इस मुल्क में बीजेपी आधे से ज़्यादा चुनाव हारी है। 50% इसी मुल्क में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारे हैं। हमारा फोकस नहीं है उस पर। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं लोग दूसरे जीत रहे हैं। जो जीत रहे हैं वो अपने रीजनल लीडर्स की वजह से जीत रहे हैं। अब अभी हमने हिमाचल प्रदेश का चुनाव देखा, कांग्रेस जीती। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश को उसके हाल पे छोड़ दिया, वो लोग गए नहीं। उनका नहीं जाना हिमाचल के कैंपेन में हिमाचल कांग्रेस के लिए वरदान साबित हुआ। तो लोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्शन ये बीजेपी के लिए घातक है, लेकिन विपक्ष के लिए अच्छा है। और नेशनलाइजेशन ऑफ द नैरेटिव राष्ट्रीय लेवल पे वो बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है, दूसरों के लिए घातक है। दूसरे शब्दों में कहें, जो लोग बिजनेस साइड के जर्नलिस्ट हैं, कि भाई बीजेपी का नेशनल लीडरशिप उनका एसेट है, उनकी स्टेट लीडरशिप उनकी लायबिलिटी है। कांग्रेस के साथ में ठीक उल्टा है, उनकी रीजनल लीडरशिप उनका एसेट है, या विपक्ष का रीजनल लीडरशिप उनका एसेट है, उनकी सेंट्रल लीडरशिप उनकी लायबिलिटी है। जितनी बार भी आप इसको ऊपर के लेवल पे 1-on-1 करने की कोशिश करेंगे, प्रेसिडेंशियल बनाने की कोशिश करेंगे, नरेंद्र मोदी की रेटिंग के सामने आप नहीं टिक पाएंगे। तो मर्जी है आपकी। एक बहुत पहले विज्ञापन आता था, बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट था, यू रिमेंबर, जो एक हेलमेट का था, जो बहुत अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का ही बनाया हुआ था, जिसमें एक हेलमेट रखा, उसके ऊपर हथौड़ा मारा, उसके अंदर नारियल रखा था, और फिर हेलमेट हटा दिया, नारियल के ऊपर हथौड़ा मारा, नारियल फूट गया, और ये कहता था अब मर्जी आपकी, आखिर सर है आपका। तो इस नैरेटिव को, इस फैक्ट को आप जितनी जल्दी समझ लें उतना आपके लिए अच्छे बात है। मर्जी आपकी, सर है आपका। नहीं तो बनाइए प्रेसिडेंशियल। 2014-2019 आप देख चुके हैं, 24 भी आप देख लेंगे। संजय जी, आई रिमेंबर एक लोक नीति का सर्वे भी आया था रिसेंटली, जिसमें यही बोला था राहुल गांधी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी गैप बिटवीन हिम एंड प्राइम मिनिस्टर, इवन दो प्राइम मिनिस्टर वाज आई थिंक स्टेटस को, इतना ज़्यादा है कि राहुल गांधी कितनी भी कोशिश करें वो उस स्तर पे नहीं आते हैं। तो व्हाट कैन राहुल गांधी डू इन टर्म्स ऑफ, अगर आपसे वो एडवाइस लेंगे तो हाउ डू यू ब्रिज दिस गैप? क्या कर सकते हैं? कर तो रहे हैं, भारत जोड़ो भी कर लिया, मोहब्बत की दुकान भी खोल ली, आगे क्या? अगर मेरे पास इसका जवाब होता तो मैं यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं देता, उनको बताता चुपके से और राज्यसभा का टिकट लेता। आजकल राज्यसभा का टिकट का बहुत चर्चा हो रही है। हाँ, राज्यसभा की टिकट की चर्चा तो होगी। देखिए, सवाल यह है कि अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपको हल्की सी बीमारी होती है, सर दर्द है, बुखार है, तो आप एक दवाई लेके ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब पेशेंट क्रिटिकल होता है, आईसीयू में होता है, उसकी टांग भी टूटी है, एक्सीडेंट हो गया है, हेलमेट का उदाहरण दे रहे थे, वो ड्राइव कर रहा था, हेलमेट भी नहीं लगाया था, सर भी टूटा है, सर भी फट गया है, पाँव भी टूटी है, हो सकता है हार्ट का भी प्रॉब्लम हो। तो जब मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर होती हैं या मल्टीपल तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कोई एक सरल उपाय नहीं होता है। तो कोई एक ऐसा सुझाव नहीं है जो कहा जाए दिस इज वन रेमेडी थ्रू विच राहुल गांधी कैन इमर्ज एज अ टॉल लीडर। आई थिंक एक बड़ी दिक्कत यह है कि
उनके सामने जो खड़ा है, जैसे कहते हैं ना, अगर क्रिकेट की भाषा में बताएं, एक इतना मजबूत प्लेयर है, इतना स्ट्रांग टीम है कि उसके सामने अच्छी टीम भी साधारण दिखने लगती है। मुझे लगता है इसका प्रॉब्लम है अभी। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु थिंक दैट राहुल गांधी इज अ वेरी बैड लीडर और उनमें कोई एबिलिटी नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज सामने जो खड़ा है वो उसका कद बहुत बड़ा है। दूसरी बात, और एक बात जो मैं एक्सेप्ट करता हूं, मुझे लगता है जो दूसरा जिसका कद बड़ा है वो मेहनत भी ज़्यादा करता है। जो बढ़िया प्लेयर है वो नेट में प्रैक्टिस भी ज़्यादा करता है। जो प्लेयर अच्छा नहीं भी है, शायद उससे कम अच्छा है, वो नेट में प्रैक्टिस भी कम करता है। तो कहने का मतलब यह है कि मेहनत और करने की आवश्यकता है। आपने मेहनत की, दिल लगाने की ज़रूरत है, दिमाग लगाने की ज़रूरत है। फिजिकली तो अब काफ़ी, जैसे भारतीय जोड़ो यात्रा की बात हो रही है, तो कई तरह की दिक्कतें नहीं, कई तरह के एक तरह से अड़चने हैं जिसको दूर करने के लिए आपको बहुत कुछ अभी करने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी का अगर मैं जिक्र करूं तो मेरे हिसाब से एक अच्छा कदम है। उन्होंने एक पार्टी प्रेसिडेंट चुना है जो नॉन गांधी फैमिली से है, तो कांग्रेस आगे बढ़ रही है। लेकिन जिसका यशवंत जी जिक्र कर रहे थे, उसी तरह से मैं राहुल गांधी के बारे में भी कह रहा हूं कि प्रिया ने राहुल गांधी के बारे में सवाल पूछा। आगे की हो रहा है, मार्च आगे की हो रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी गैप बहुत है। शायद 2024 में तो कम से कम मुझे नहीं लगता कि ये फासला वो तय कर पाएंगे। मतलब हेलमेट का नाम खारगे हो सकता है, बट स्टिल टेक्स अ व्हाइल। जब आखिरी सवाल जल्दी से मैं सेफोलॉजिस्ट से उनसे पूछना चाहती हूँ, फ्रॉम योर कॉन्वर्सेशन मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या बीजेपी आगे होएगी, लेकिन क्या वो मेजॉरिटी क्रॉस कर पाएगी या उनको ज़रूरत पड़ेगी एलाइज की? वेल, जो अभी के नंबर हैं उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि उनको क्लियर मेजॉरिटी एज ऑन टुडे मिल जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो नॉन कांग्रेस या नॉन अपोजिशन जो इस देश में है, वो भी 3-4 पार्टियों का बड़ा विचित्र है, जो कि बीजेपी के साथ में नहीं होकर के भी बीजेपी के साथ में रहा है पिछले 9 सालों में। आंध्र की पार्टियां, दोनों बोल रहा हूँ, आंध्र की और बीजू जनता दल की पार्टी, ये एक ब्लॉक इस तरीके की पार्टियों का करीब 50 सीटों का है, जो बीजेपी के लिए एक बफर की तरह साबित होता है। जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए टैप इन कर लेते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक दबा हुआ सा नैरेटिव है। उनकी रीजनल पॉलिटिक्स है, जीत के आते हैं, लेकिन केंद्र वालों के साथ में वो जाते हैं। तो संजय जी ने जैसा बोला, मुझे कोई लगता नहीं कि कुछ बहुत बड़ा उलटफेर अभी फ़िलहाल आज की तारीख में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आपका प्रेडिक्शन? अब प्रिया पूछ रही है कि 10 अप्रैल को बारिश होगी या नहीं होगी। 10 अप्रैल 2024 को बारिश होगी या नहीं होगी, मैं कैसे बताऊं? डिपार्टमेंट से पूछ रही हूं और किसी से नहीं। मेट डिपार्टमेंट भी आपको नहीं बताएगा कि 10 अप्रैल को बारिश होगी या नहीं होगी। 10 अप्रैल 2024 को वो कैसे बता सकता है? वो कब बताने की स्थिति में होगा? वो 5 अप्रैल को बताने की स्थिति में होगा कि 10 अप्रैल को बारिश होने की क्या गुंजाइश है। अगर आप मेट डिपार्टमेंट से ये पूछें कि कल बारिश होगी कि नहीं, परसों बारिश होगी कि नहीं, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। यशवंत जी के बात से मैं सहमत हूँ। आज की स्थिति में हम कह सकते हैं, और आज की स्थिति में मुझे तो बहुत साफ लगता है। और आज की स्थिति क्या है? इंडिया गठबंधन बन गया, अगर ये मैं मान भी लूँ, इंडिया गठबंधन बन गया, सीटों का बंटवारा मोर और लेस ठीक ठाक हो गया, फिर भी मुझे लगता है बीजेपी अपने मेजॉरिटी मार्क के ऊपर मुझे दिखाई पड़ती है। चलिए, थैंक यू सो मच। हम तो जर्नलिस्ट हैं रशीद, वी कैन गिव अ प्रेडिक्शन, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम ऑफ द मेट डिपार्टमेंट। डू यू वांट टू से सम क्विक, वी आर फिनिशिंग? Quickly, I think the whole, we were talking great lengths at about narrative. I think the whole narrative that this 24 election is versus Narendra Modi versus Rahul Gandhi is a misnomer. Mr. Rahul Gandhi is not a candidate by a party, by the India Alliance. This is a kind of narrative that builds the whole thing, that 24 is about Modi and Rahul Gandhi. So I think it's more about 24 election is about the various state regional parties and the BJP, and that's the real test and a very keen contest. And my own take is it's going to be a hung house. ये केवल लास्ट बोलूंगा, क्योंकि नैरेटिव्स की बात हुई और सारी चीजें लगा कि प्रो बीजेपी प्रो मोदी ही नैरेटिव है। ऐसा नहीं है। एक नैरेटिव जो है वो बीजेपी का फेल हुआ है, वो है डबल इंजन का नैरेटिव। डबल इंजन का नैरेटिव उस तरीके से नहीं चला। आगे वाला इंजन फेल हुआ या पीछे वाला? एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था कि 2 इंजन हैं, उसमें से एक इंजन तो आगे खींच रहा है, दूसरा इंजन बीजेपी का जो मुख्यमंत्रियों का है वो गार्ड के डब्बे की जगह पे उल्टी तरफ मुंह करके चलता है। तो वो एक ही इंजन है जो सारी ताकत लगा के आगे खींचता है। ये डबल इंजन का नैरेटिव यहाँ अटका।
चलिए, on that note, thank you so much, Ashwin ji, Sanjay ji, and Rashid ji for this conversation. All right. A big round of applause, please. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.